Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 24 of Indian Evidence Act 1872 that deals with the topic of confession. So in Section 24, whenever any confession is caused by any inducement, threat or promise, that confession becomes irrelevant. So we will discuss all the concept of section 24 as well as we will discuss the question asked by the examiner on this topic and the question which may be asked by the examiner. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 24 जो डील करता है कन्फेशन से। इस टॉपिक में ऐसा कन्फेशन जो किसी को बहला फुसला कर लिया गया है, किसी को फंसा कर लिया गया है, कुछ प्रॉमिस करके लिया गया है, वो कन्फेशन सेक्शन 24 के हिसाब से इररिलेवेंट है। तो पूरा सिनेरियो, पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Confession, Section 24 of Indian Evidence Act 1872 we will discuss in this particular lecture. So Section 24 deals with confession caused by inducement, threat or promise from a person in authority. So whenever confession is obtained by any kind of inducement, threat or promise, and if that particular inducement, threat and promise is from the person in authority, then that particular confession is irrelevant under section 24 of Indian Evidence Act. So confession made by an accused is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by inducement, threat or promise made by any person in authority, and that in the view of the court such inducement, threat or promise gives reasonable ground to the person that by making the confession he would gain any advantage or avoid any evil of a temporary nature in reference to the proceeding against him. So whenever the confession is caused by any inducement, threat and promise from a person in authority, and if by such inducement, threat and promise, if a person who gives a confession feels that he would gain any advantage only because of such a confession, then under such a circumstances such confession becomes irrelevant. तो सेक्शन 24 ये कहता है कि जब कभी भी किसी अक्यूज्ड का कन्फेशन उसको बहला फुसला कर, उसको धमकी देकर या उसको कुछ प्रॉमिस कर कर अगर लिया गया है कन्फेशन, और कन्फेशन लेते वक्त अगर वो पर्सन को, अक्यूज्ड को ये लगे कि अगर मैं कन्फेशन दूं तो मुझे कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा सेक्शन 24 के हिसाब से। सो द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अब कुछ इसेंशियल कंडीशन है जो कि फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट इसेंशियल है confession caused by inducement, threat and promise. So when confession becomes irrelevant under section 24, if such confession caused by any inducement, threat or promise, ऐसा confession section 24 में irrelevant हो जाएगा जो कि confession किसी को धमकी देकर लिया गया हो या किसी को बहला फुसला कर लिया गया हो या किसी को कुछ प्रॉमिस करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके फैमिली मेंबर को अगर किडनैप कर कर अगर उसे कहे कि तू कन्फेशन दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम तेरे फैमिली मेंबर को जान से मार देंगे, ये कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। अगर किसी को बोले कि अगर तुम कन्फेशन देगा तो हम तेरी सजा कम कराएंगे, दैट इज ऑल्सो confession caused by inducement, such confession becomes irrelevant। या कुछ वादा करते, कुछ प्रॉमिस करते, फॉर एग्जाम्पल कि कन्फेशन अगर तू देता है तो हम तुझे इतना इतना पैसा देंगे, लाइकवाइज। तो ऐसा कोई कन्फेशन रहे तो दैट कन्फेशन बिकम्स irrelevant। सो द फर्स्ट essential to make a confession irrelevant is confession caused by inducement, threat or promise. Second essential is that threat, inducement and promise from a person in authority. So such inducement, threat
and promise must be from a person in authority. If the inducement caused by any other person not in authority, then such confession will be relevant, not an irrelevant. एक बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो दूसरा इसेंशियल है सेक्शन 24 का, वो कहता है कि जो इंड्यूसमेंट है, जो धमकी है, जो बहलाना फुसलाना है, जो प्रॉमिस है, वो किसके तरफ से आना चाहिए? ऐसा पर्सन जिसकी उस मैटर पे, उस केस पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी हो. लाइक अथॉरिटी कैसा कहेंगे कि अगर एडवोकेट अगर कोई प्रॉमिस या धमकाता है, या जज या उसका कोई क्लर्क या पुलिस ऑफिसर जिनकी उस केस पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी हो, अगर ऐसे पर्सन के तरफ से इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होता है तो वो कन्फेशन सेक्शन 24 में इररिलेवेंट होगा. अब उसमें केस है इन द प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. If a friend of the accused induce him to make a confession or a relation, if he makes him a promise that if he confess he will get him released, or even if he threatens him and the accused on that account admits his guilt, this statement will not be excluded by section 24, as the threat, inducement or promise do not emanate from a person in authority. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक दोस्त ने अक्यूज को कहा, अक्यूज के दोस्त ने कहा कि भाई तू कन्फेशन दे दे, और अगर तू कन्फेशन देगा तो मैं तुझे इस केस से छुड़ाऊंगा. या अगर दोस्त ने धमकी भी दिया कि अगर नहीं तूने कन्फेशन दिया तो मैं तुझे सजा दिलाऊंगा, तो भी क्या होगा कि यहां पर दोस्त ने जो उसको वादा किया था कि अगर तू कन्फेशन देगा तो मैं तुझे इस केस से छुड़ाऊंगा, बाइज्जत बरी कराऊंगा, तो उसके चलते अक्यूज ने कन्फेशन दिया दोस्त को. तो यहां पर ये सेक्शन 24 ये कहता है कि वो जो इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, वो पर्सन इन अथॉरिटी की तरफ से आना जरूरी है. तो यहां पर एक क्वेश्चन है, वेदर द फ्रेंड इज हैविंग एनी अथॉरिटी ओवर द मैटर. वो दोस्त का मैटर पे कोई अथॉरिटी थी क्या? तो दोस्त की इस मैटर पे कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, मतलब दोस्त में वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि उसकी सजा कम कर सके. तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है वो पर्सन इन अथॉरिटी नहीं है, फ्रेंड इज नॉट अ पर्सन इन अथॉरिटी. और कोर्ट ने कहा कि जो कन्फेशन अक्यूज ने दिया वो कन्फेशन यहां पर रिलीवेंट हो गया है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज. वो जो इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, दैट मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज. चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए. कैसा कि हम तुझे, अगर तूने कन्फेशन नहीं दिया तो सजा दिलाएंगे, लाइकवाइज ऐसा अगर रहा तो ही वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अदरवाइज नॉट. सो दिस रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द सेक्शन व्हिच सेज दैट द इंड्यूसमेंट मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन. वो इंड्यूसमेंट का, वो थ्रेट का, वो प्रॉमिस का कहीं ना कहीं अक्यूज पे लगे हुए चार्ज से लेना देना होना चाहिए. अगर वो चार्ज से लेना देना नहीं रहा तो वो कन्फेशन रिलीवेंट हो जाएगा यहां पर सेक्शन 24 में. अब देखो, इन द केस ऑफ इम्प्रेस वर्सेस मोहनलाल, द कन्फेशन बाय अ पर्सन हु वाज थ्रेटन्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज कास्ट फॉर लाइफ वाज हेल्ड टू बी रिलीवेंट बिकॉज द थ्रेट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द चार्ज. अब यहां पर क्या हुआ था, इस केस में अक्यूज्ड का कन्फेशन लिया गया, क्या धमका के उसको, धमकी क्या थी कि अगर तू कन्फेशन नहीं देगा तो हम तुझे जात के बाहर कर देंगे, रिमूव फ्रॉम हिज कास्ट, हम तुझे जात के बाहर कर देंगे. और इसके चलते अक्यूज ने कन्फेशन दिया. तो यहां पर ये केस में कोर्ट ने कहा कि ये कन्फेशन रिलीवेंट है. क्यों? क्योंकि वो धमकी का चार्ज से कोई लेना देना नहीं था. अगर वही धमकी ये होती कि अगर तूने कन्फेशन नहीं दिया तो हम तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, तो वो धमकी का कहीं ना कहीं रेफरेंस होता चार्ज के साथ. बट जात के बाहर निकालना और चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, तो धमकी का और चार्ज का दोनों का रेफरेंस होना जरूरी है, तभी वो सेक्शन 24 में वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अदरवाइज नॉट. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सफिशियंसी ऑफ द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. जो इंड्यूसमेंट है, जो थ्रेट है, वो प्रॉमिस है, वो सफिशिएंट होना चाहिए. समझ रहे हो, वो सफिशिएंट होना चाहिए. सो बिफोर अ कन्फेशन इज एक्सक्लूडेड, inducement, threat or promise would, in the opinion of the court, be sufficient to give accused person ground that by making the confession he would gain an advantage or avoid an evil. So such threat, inducement and promise must give an apprehension and must satisfy the accused that if he would
confess his guilt, then definitely he would gain some advantage by such a confession. अगर अक्यूज को ये लगना चाहिए कि अगर मैं कोई कन्फेशन दूं तो इसका कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे एडवांटेज होगा मेरे कन्फेशन का, अगर ऐसा है तो वो जो इंड्यूसमेंट, वो थ्रेट और प्रॉमिस है वो सफिशिएंट है, ऐसा ट्रीट होगा, अदरवाइज नॉट. So consequently, the mentality of the accused has to be judged and not that of the person in authority. तो यहाँ पर whether वो जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो सफिशिएंट है या नहीं है ये देखना है, तो हमको किसकी मेंटालिटी को जज करना पड़ेगा? अक्यूज्ड की. अगर फॉर एग्जांपल मैं अक्यूज्ड हूं और कोई मुझे इंड्यूस करता है या मुझे प्रॉमिस करता है या मुझे थ्रेट करता है, धमकी देता है कन्फेशन के लिए, तो मुझे ये लगना चाहिए कि अगर मैं कन्फेशन नहीं दिया तो इसका नुकसान मुझे हो सकता है और मैंने कन्फेशन दिया तो इसका बेनिफिट मुझे होगा. अगर मुझे ऐसा लगा तो सच will comes under the category of sufficiency of inducement, threat or promise. For example, a reference to spiritual benefit such as taking an accused to a temple to confess does not fall in the category, but a promise to reduce the sentence would fall under it. तो क्या होगा कि अगर किसी अक्यूज्ड को मंदिर में ले जाके उससे कसम खिला रहे कन्फेशन से रिलेटेड, तो ये सफिशिएंट नहीं है, बल्कि कौन सा इंड्यूसमेंट सफिशिएंट है कि अगर उसको इंड्यूस किए, उसको प्रॉमिस किए कि भाई तू कन्फेशन देगा तो तेरी हम सजा कम कराएंगे, तो ये सफिशिएंसी ऑफ इंड्यूसमेंट हो जाएगा. अब देखिए कि यहां पर है कि ऑन द अदर हैंड, यू बेटर पे द मनी देन गो टू जेल. इफ यू टेल मी वेयर माई गुड्स आर, आई विल बी फेवरेबल टू यू. आई विल गेट यू रिलीज इफ यू टेल मी द ट्रुथ. ये जितने एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सफिशिएंसी ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ थ्रेट और प्रॉमिस. क्योंकि यहां पर मैं अगर किसी अक्यूज को ऐसा कहता हूं कि यू बेटर पे द मनी देन गो टू जेल, कि तुम बेटर पैसे पे करो नहीं तो जेल जाओ, लाइक दैट. इफ यू टेल मी वेयर माई गुड्स आर, आई विल बी फेवरेबल टू यू. अगर तुम मुझे मेरा गुड्स कहां पर आपने रखे ये बताओगे तो मैं तुमको फेवरेबल हूंगा, मैं तुम्हारे फेवर में बात करूंगा. इट विल गेट यू रिलीज इफ यू टेल मी द ट्रूथ. मैं तुमको आजाद कराऊंगा अगर तुम मुझे सच्चाई बताए. तो ये जो है ये सफिशिएंसी ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का एग्जाम्पल कहलाएगा. अब इस पर पूछे गए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 पे. मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट, बिफोर डॉक्टर, बिफोर फ्रेंड, बोथ बिफोर डॉक्टर एंड फ्रेंड. अगर हम देखें तो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा और डॉक्टर और फ्रेंड के सामने दिया हुआ कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में, जेएमएफसी में. कन्फेशन मीन्स एन एडमिशन ऑफ द अक्यूज्ड, admission of the facts constituting an offense, exculpatory statement of the accused, self-serving statement of the accused. तो अगर हम देखें तो confession is an admission of the fact constituting an offense. अगर हम गुनाह कबूल कर रहे हैं, एक आधा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट में से ये पता चलता है, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ कन्फेशन. नेक्स्ट वन इज प्रोबेबल क्वेश्चन जो पूछ सकता है एग्जामिनर, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन इज नॉट रिलीवेंट. इसमें से कौन सा कन्फेशन रिलीवेंट नहीं है. कन्फेशन ऑब्टेन्ड बाय इंड्यूसमेंट फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, कन्फेशन ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, कन्फेशन ऑब्टेन्ड बाय प्रॉमिस फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबोव. अगर हम देखें तो सेक्शन 24 ने ये क्लियर किया, ऐसा कन्फेशन इररिलेवेंट है जो विच इफ दैट कन्फेशन इज कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस. मतलब बहला फुसला के भी लिए तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट है, कुछ प्रॉमिस करके भी लिए तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट है, और धमका के भी अगर कन्फेशन लेते तो वो भी इररिलेवेंट है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. तो ये था सेक्शन 24 जिसमें बताया गया कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस इज irrelevant. So I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.